Dear children, a very good morning to all of you. Today we are starting your chapter number 4, which is materials, metals, and non-metals. So in the previous class, you have already read about number of materials like iron, aluminum, and copper, right? Iron means loha, aluminum is aluminum, and copper means tamba. So at least these are three materials which you see in your daily household, isn't it? आप सभी के घरों में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा, जो या तो लोहा होगा, एल्यूमिनियम होगा या तांबा होगा। आप अपने मम्मी डैडी से पूछिए और से छू के देखिए, फील करके देखिए कि लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा में क्या क्या फर्क होता है। Alright, so now when you do that, then you record the appearance and hardness of these particular elements. So first element is iron, then coal, then sulfur, then aluminum and copper. So यहाँ पे आपको दो चीजें रिकॉर्ड करनी है. This is the homework for you to do in your book. So क्या करना है? सबसे पहले आपको उसका अपीयरेंस रिकॉर्ड करना है. अपीयरेंस मतलब शाइनी है वो या डल है, उसका कैसा है? आयरन में शाइन होती है कि नहीं होती है? कोल, कोल मतलब कोयला, उसमें शाइन होती है नहीं होती है? सल्फर, सल्फर किस फॉर्म में होता है? पाउडर फॉर्म में, येलो कलर का. सो उसमें वो शाइनी होता है या डल होता है? एल्यूमिनियम शाइनी होता है या डल होता है? कॉपर, तांबा, वो शाइनी होता है या डल होता है? You have to record word either shiny or dull in this column, and then in this column you have to write about the hardness of that particular material. So इस material की hardness, iron वो hard होता है कि नहीं होता? So you, if it is not hard, then write it is not very hard, and if it is hard, write it is very hard, and if it is not hard at all, then write it is not hard. ठीक है? So uh, if you're looking at this table number 4.1, can you tell me which of these materials are metal? Can you? Absolutely right. Iron, aluminium, and copper. All these three are metal, but coal and sulfur, these are not non-metals. So metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Physical and chemical properties क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की होती है जब आप उसको छू कर देख सकते हैं या एटलीस्ट आप उसको देख सकते हैं. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल की क्या होती है? जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है. दैट इज व्हाई यू आर रीडिंग केमिस्ट्री. तो हर किसी मटेरियल की कुछ ना कुछ केमिस्ट्री होती है और हर किसी मटेरियल की कुछ ना कुछ physical properties होती हैं. So in this chapter we are going to read about both physical and chemical properties of metals and non-metals. So let's move forward with physical properties of metals and non-metals. So आपने कभी blacksmith को, who is a blacksmith? Blacksmith is a लोहार. आपने कभी blacksmith को देखा है कि वो एक आयरन को जोर जोर से मार मार के या तो उससे फावड़ा बनाता है या उससे कोई भी मेटल की कोई खुरपी बना रहा है या उससे हथौड़ा बना रहा है या उससे एक्स बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, राइट? सो कैसे बनाता है वो? बाय बीटिंग इट कंटिन्यूअसली. सो लोहार क्या करता है? जोर जोर से उस मेटल पे हिट करता है. तो आपको समझ में आती है कि जब आप किसी मेटल को जोर जोर से हिट करते हैं तो क्या होता है उसमें? उसकी शेप में चेंज आता है, राइट? सो अगर आप इसी तरीके से अगर किसी वुडन पीस को ले लीजिए, आपके घर के बाहर आपको कोई ना कोई लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा, ठीक है? और आप उसको हथौड़े से मारिए और देखिए कि क्या वो किसी यू नो एक्स में या किसी शीट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इट विल नॉट, right? So because wood is a non-metal and iron is a metal. So this is the difference in both of them. There are many differences between metal and a non-metal, and this is one of them. So this is a small activity for you to do, and you should do this activity with the help of your mother and father. Do not do it yourself, because if you will do it yourself, you'll get hurt because you're very small to do it right now. है ना? आप बहुत छोटे हैं इसको करने के लिए. So don't do that. So what you have to do is take a small iron nail. आपके घर में ऐसी छोटी छोटी कीलें होंगी, और अगर आपके घर में कोयले का एक पीस है आप उसको भी ले लीजिए, और एल्यूमिनियम की अगर कोई वायर आपके घर में रखी है आप उसको ले लीजिए,
और जिस पेंसिल से आप लिखते हैं उसकी नोक को तोड़ के थोड़ा सा रख लीजिए और इन सब चीजों को अपने साथ में रखिए। और अब आपको क्या करना है कि आपको हथौड़ा लेना है और उसको, हाँ, इसको हिट करना है, उन चारों पांचों चीजों को। यू हैव टू हिट इट हार्ड, राइट? एंड हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, इन सबको आप करोगे। एंड देन जब आप इन सबको ये प्रोसेस इनके साथ कर लेंगे, तो उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट आएगा ना, आपको उसे इस टेबल में लिखना है। ठीक है? सो इस टेबल में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? इस टेबल में हम इन चीजों की मेलेबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेलेबिलिटी को। सो मेलेबिलिटी क्या होता है? आपने देखा कि अगर आप आयरन नेल पे बहुत जोर जोर से हिट करेंगे तो क्या होता है? द शेप ऑफ द आयरन नेल चेंजेस, राइट? आप उसको मार मार के उसे मोड़ सकते हैं, या अगर आप एल्यूमिनियम आपके पास है तो आप उसको अगर बहुत जोर जोर से हिट करेंगे तो वो शीट में भी कन्वर्ट हो जाती है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि आप जो मेटल्स हैं उसकी शेप को आप चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास एक आयरन नेल है, एक कोल पीस है, एक एल्यूमिनियम वायर है और एक पेंसिल लीड है। आप इन सब चीजों को जोर जोर से हिट करेंगे और अपने आउटपुट को इस टेबल में यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आयरन नेल को बहुत जोर जोर से हिट करते हैं तो आपको रिकॉर्ड करना है कि उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ है। तो वेयर विल यू डू इट? यू विल डू इट इन दिस टेबल विच इज टेबल नंबर 4.2। तो आपको लिखना है कि वो फ्लैट हो गई या वो पीसेस में ब्रेक हो गई। यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल दीज थिंग्स। ऑल राइट? तो इसी तरीके से अगर आप कोयले पे उसको बहुत जोर से मारेंगे तो फिर कोयले का क्या होगा? So this is what you have to record in this particular box. उसमें आप लिखिए कि वो ब्रेक हो गया या वो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है ना? सो अगर, और फिर आपके पास एल्यूमिनियम वायर भी है, आप एल्यूमिनियम वायर को भी इसी तरीके से हिट करके देखिए और फिर पता लगाइए कि जब आपने एल्यूमिनियम वायर को इतनी जोर जोर से हिट किया तो क्या वो शीट में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। सो इफ दे वर बीटन हार्डर, दीज कुड बी चेंज्ड इनटू शीट। तो अगर आप किसी भी मेटल को, फॉर एग्जांपल आयरन को, अगर जोर जोर से बीट करते हैं ना, तो इट विल चेंज इनटू अ sheet. So you might be familiar with silver foil used for decorating sweets, right? आपने कभी देखा है, अगर आप किसी स्वीट की शॉप में गए हैं पहले, तो आपके स्वीट्स के ऊपर एक चमकीली सी एक लेयर होती है, चिपकी होती है। तो क्या कहते हैं, उसको आप खा भी सकते हैं। तो दैट इज सिल्वर फॉइल, जो कि स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगाई जाती है। और आपके घर में भी तो एल्यूमिनियम फॉइल है ना? आपके घर में है कि नहीं एल्यूमिनियम फॉइल? अगर आप स्कूल आते हैं या आपके पापा ऑफिस जाते हैं तो योर मदर कीप्स दीज फूड सेफ इन एल्यूमिनियम फॉइल एंड इट इज यूज्ड फॉर रैपिंग द फूड, right? So the property of these metals by which they can be beaten into thin sheets is called as malleability. So हर चीज की तो शीट नहीं बनाई जा सकती ना। अगर आप वुडन लॉग है अगर आपके पास घर में, या कोई भी प्लास्टिक है ना, अगर आप उनको बार मारेंगे 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 तो क्या जोर जोर से हिट करने के बाद भी वो शीट बनेगी? बिल्कुल ऐसी शीट बनेगी जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल होती है? नहीं बनेगी ना। सो बट एल्यूमिनियम कैन मेक अ एल्यूमिनियम फॉइल। कितनी पतली शीट होती है, आप उसमें अपनी रोटी को भी रैप कर सकते हैं, राइट? तो किसी भी मेटल का जब उसको मार मार के उसको बीट करके जब हम ऐसी इतनी पतली थिन शीट बना सकते हैं लाइक द एल्यूमिनियम फॉइल, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है ना? सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलेबिलिटी। तो ये जो टेबल है आपकी 4.2, इसमें हम लोग यही चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेदर दी metal will be converted into thin sheets or not. So this is a characteristic property of metals. So अगर आप एल्यूमिनियम को ऐसे जोर जोर से मारेंगे तो एल्यूमिनियम शीट बन जाएगी। अगर आयरन को मारेंगे तो आयरन शीट बन जाएगी। गोल्ड को मारेंगे तो गोल्ड की शीट्स बनेंगी। सिल्वर को मारेंगे तो सिल्वर की शीट्स बनेंगी। लेकिन अगर आपने कोयले के ऊपर हैमर जोर से मारा तो क्या होगा? जो कोयला है वो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम अ पाउडर, राइट? सो दिस इज तो सो ये कोयला जो है, इट इज नॉट अ मेटल, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू अ शीट, राइट? अब जैसे पेंसिल की टिप है आपके पास, आप उसको तोड़ के रखिए और उसके ऊपर हथौड़ा मारिए, तो वो पेंसिल की जो लीड है वो क्या शीट बन जाती है? नो, इट ऑल्सो बिकम्स पाउडर, इजंट इट? सो ये जो भी चीजें जो शीट में नहीं कन्वर्ट हो पा रही हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। तो इसका मतलब क्या है? जो मेटल्स होती हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको जोर जोर से हिट किया जाए तो व्हाट डज इट डू? इट कन्वर्ट्स इनटू अ थिन शीट,
right? So now let's talk about the induction properties of the induction and the conduction properties of the metals and non metals. इसका मतलब क्या है? अच्छा, आपकी मम्मा किचन में खाना बनाती है ना, तो मम्मा आपको कहती है ना कि थोड़ा दूर हो जाइए, पास मत आइए, बिकॉज आपका हाथ जल जाएगा। वो कढ़ाई में खाना बनाती है, तो कढ़ाई किस मेटल की बनी होती है? कढ़ाई या तो एल्यूमिनियम की बनी होगी, या आयरन की बनी होगी, या किसी और चीज की भी बनी हो सकती है, राइट? तो ये जिन भी चीजों की बनी होती है वो मेटल होती है। आपने कभी लकड़ी की कढ़ाई सुनी है? नहीं सुनी होगी आपने। क्यों? बिकॉज लकड़ी तो खुद ही वुड में जल जाएगी ना, तो वो खाना कैसे पकाएगी? नहीं हो सकता ना। सो ओनली मेटल्स कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, इजंट इट? लेकिन अगर कोई भी चीज बहुत गर्म है और आपको उसे उठाना है, तो आप हैंडल किस चीज का बनाएंगे? किस चीज का बनाएंगे? अगर प्लास्टिक का बनाएंगे तो क्या होगा? प्लास्टिक तो मेल्ट होने लग जाएगा, राइट? लेकिन अगर आप वुडन का हैंडल बनाएंगे या किसी और मटेरियल का हैंडल बनाएंगे, तो क्या होगा? आप गरम कढ़ाई भी अपने हाथों से उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो गर्मी है ना मेटल की, वो वुड में ट्रांसफर नहीं होती। देखो, अगर आपके घर में कोई कढ़ाई है, आप जाके देखिए अपनी किचन में, अपनी मम्मा से बोलिए कि आपको दिखाएंगी। तो if the holders of the कढ़ाई are also made up from the same metal, for example अगर एल्यूमिनियम की आपकी कढ़ाई है और उसके हैंडल्स भी एल्यूमिनियम के हैं, तो जब वो कढ़ाई गर्म होगी तो उसके हैंडल्स भी गर्म हो जाएंगे ना। तो मम्मा को क्या करना पड़ेगा? मम्मा विल हैव टू यूज अ क्लॉथ। मम्मा को कोई कपड़ा यूज करना पड़ेगा। कपड़ा यूज करेंगी तभी तो वो उतना गरम गरम उसका हैंडल पकड़ पाएंगी, राइट? लेकिन अगर वो हैंडल एल्यूमिनियम के नहीं होते और वुड के होते, तो क्या होता? आप उसको आराम से पकड़ लेते। क्यों? क्योंकि मेटल से नॉन मेटल में क्या गर्मी, हीट ट्रांसफर नहीं होती, डजंट ट्रांसफर, राइट? सो ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको वुड के साथ, प्लास्टिक के साथ हो सकते हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गर्म हो जाती हैं, लेकिन उसमें जो प्लास्टिक लगा होता है उसकी हेल्प से आप उसको उठा भी सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका हाथ नहीं जलता, है ना? तो इसका मतलब क्या है? कि हीट का कंडक्शन नहीं होता वुड में और प्लास्टिक में, है ना? तो कभी भी कोई चीज गर्म है अगर बहुत ज्यादा, तो आप उसको लकड़ी की हेल्प से या क्लॉथ की हेल्प से या प्लास्टिक की हेल्प से आराम से उठा सकते हैं। आपने कभी स्क्रू ड्राइवर का हैंडल देखा है? स्क्रू ड्राइवर क्या होता है? पेचकस आपके घर में होगा, ठीक है? जरा अपने डैडी से पेचकस मांगिए और उसको देखिए एक बार। वो आगे से तो लोहे का बना है, आयरन का, लेकिन पीछे से किस चीज का बना है? प्लास्टिक का या वुड का बना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिशियन कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हैं। तो जब वो अपना स्क्रू ड्राइवर ड्राइवर जब वो उसके अंदर डालेंगे, स्विच के अंदर, तो उसमें भी तो करंट आएगा ना। तो इलेक्ट्रिशियन को तो करंट लग जाएगा, नहीं? तो इलेक्ट्रिशियन को करंट क्यों नहीं लगता? वो इतना सारा बिजली का काम करते हैं, उन्हें करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके जो पेचकस हैं वो पूरे के पूरे आयरन से नहीं बने होते हैं। वो आधे आयरन से बने होते हैं और आधे वुड से बने होते हैं। तो आयरन में तो करंट होता है, लेकिन जो करंट है वो आगे जाके वुड में ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो जब आगे जाके करंट वुड में ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो वो फिर उसे करंट भी नहीं लगेगा, राइट? सो इसीलिए ये होता है। सो आपको लास्ट क्लास में याद है, लास्ट ईयर आपने ये एक्सपेरिमेंट अपनी क्लास में किया था, और अगर नहीं किया था तो आप इसे अपने घर में कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी, लेकिन प्लीज डू इट इन दी प्रेजेंस ऑफ योर मदर एंड फादर, बिकॉज यू कैन गेट योर सेल्फ हर्ट इन दी प्रोसेस। आपको चोट लग सकती है। सो नेवर नेवर डू दिस एक्सपेरिमेंट्स विदाउट दी हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। सो आपको याद है, अगर आप एक क्लास में आपको दिखाया था आपकी टीचर ने कि अगर आप एक सेल लेते हैं और उस सेल में आप दो तार लगाते हैं, तो आप यहाँ पे एक बल्ब लगा सकते हैं। अब अगर आपने इन दो तारों को बीच में काटा और इन तारों को आपने यहाँ पे देखिए एक कील के हेल्प से आपने ये कील को इन तारों के बीच में बांध दिया, तो भी लाइट जल रही है। क्यों? बिकॉज दिस पिन इज मेड अप ऑफ आयरन। आयरन क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर पास कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है, आपके घर के बड़े आपको कहते हैं ना कि ये जो बिजली के पोल्स लगे हुए हैं, बिजली के जो खंभे लगे हुए हैं, आपको उनके पास नहीं जाना है, क्योंकि आपको करंट लग जाएगा। बिकॉज बिजली के खंभों में क्या होती है? बिजली होती है ना। तो अगर आप उसको जाके टच करेंगे और इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, बिकॉज बारिश बारिश मतलब पानी, पानी भी करंट को ट्रांसफर करता है। अगर पानी में करंट है और आप पानी को छुएंगे तो आपको भी करंट लग जाएगा, है ना? तो
इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जब कभी बारिश हो रही हो और अगर बारिश ना भी हो रही हो तो भी आपके घर के बड़े कहते हैं कि हमें आयरन के पोल्स को नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमें क्या लग सकता है, उससे हमें करंट लग सकता है। तो हमें हमेशा उनसे दूर होके ही चलना चाहिए। ठीक है ना? तो अब आपके लिए दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर है, इसको आपको करना है और इसमें यहाँ पे लिखना है। सो इसको करने की भी बहुत जरूरत नहीं है, आपके पेरेंट्स को इसका एक्सपीरियंस है। आप उनके साथ बैठिए तो वो आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंसेस एंड देन यू कैन राइट द आंसर्स हियर। सो लाइक आई शोड यू इन दिस पिक्चर कि उन्होंने यहाँ पे एक आयरन का पिन रखा, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से शुरू हुई और फिर इस बल्ब तक चली गई और पूरा एक सर्किट बन गया और लाइट चल गई। राइट? तो इसी तरीके से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को इस तरफ से उस तरफ पहुंचाना, है ना? आपके घर में अगर किसी एक जगह पे तार टूट जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती ना, फिर आगे जाती है क्या? नहीं जाती ना। तो तार को जोड़ना पड़ता है, जब तार जोड़ते हो आप तभी इलेक्ट्रिसिटी तो सुधर जाती है। राइट? सो फिर इसका मतलब क्या है कि कोई कोई चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाती है यहाँ से वहां तक। जैसे अगर मैं इस वाले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे अगर मैं कील की जगह क्या रख दूं, अगर मैं कील की जगह यहाँ पे कोई वुड रखूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वुड रखूंगी, देखिए इसको, तो क्या होगा? वुड जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वुड जो है इट इज नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे वुड लगाने से हमारा कोई काम नहीं होगा, तो ये बल्ब यहाँ पे नहीं जलेगा। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे एक आयरन रॉड का इस्तेमाल किया है, तो वो क्या करेगी? वो हमको हेल्प करेगी कि हम इलेक्ट्रिसिटी को आगे पहुंचा सके। तो ये रहा आयरन रॉड या आयरन की नेल। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? इट इज अ गुड कंडक्टर, क्योंकि वो यहाँ से वहां इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा देगा। तो सिमिलरली यू कैन गूगल द आंसर्स फॉर दीज और यू कैन आस्क द हेल्प, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स टू राइट द आंसर्स इन योर बुक। सो जब आप इसे करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि आयरन और कॉपर दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कोयला एंड सल्फर दे आर वेरी पुअर कंडक्टर्स। अगर आप सल्फर में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ेंगे ना और आप सल्फर को टच करेंगे तो आपको कोई करंट नहीं लगेगा। अगर आप कोयले में एक तरफ एक वायर लगाएंगे जिसमें की करंट है और दूसरी तरफ से आप उसको छुएंगे तो भी आपको करंट नहीं लगेगा। So why? Because these are poor conductors of electricity. And children, you're not supposed to do this, all right? So this is to tell you that these are good conductors and poor conductors. So now, after doing this, let's discuss where do you find the use of aluminum and copper wire? कहाँ यूज होता है? आपने कभी कोयले के तार देखे हैं क्या? कभी भी नहीं देखे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पास होगी। राइट? सो और दूसरी चीज क्या है? कोयले के तार बन भी तो नहीं सकते ना बच्चा, बिकॉज कोयले को आप जैसे ही हिट करोगे वायर बनाने के लिए तो क्या होगा? वो तो पाउडर बन जाएगा, तो बना ही नहीं सकते आप उसके। राइट? तो अगर किसी भी मेटल को अगर वायर में तारों में कन्वर्ट करना है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, सी यहाँ पे लिखा है DUCTILITI। सो अगर आपको कभी भी किसी मेटल के तार बनाने हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक लोहा पड़ा है, ठीक है, तो आप उस लोहे के तार बना सकते हैं। पहले आपको उसको बहुत हिट करना पड़ेगा, बीट करना पड़ेगा, फिर आपको उससे वायर बनाने पड़ेंगे। लेकिन हर चीज इतना सारा फोर्स सहन नहीं कर सकती है ना, कुछ चीजें टूट जाती हैं, उनके तार ही नहीं बन पाते हैं। राइट? सो डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जो मेटल्स के पास होती है so that उनके वायर्स बन सके। So have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet blade and a metal coin and a piece of coal on the floor? कभी आपने ऐसा फील किया कि उनकी साउंड्स में कैसा डिफरेंस होता है? I'll repeat again. अगर आप कोई लोहा होगा आपके घर में, अपनी मम्मा से मांगिए और आप उसको जमीन पर गिराइए तो आवाज आएगी, है ना? और फिर आपके पास एक मेटल का कॉइन भी होगा, वो मम्मा से लीजिए, उसको जमीन पे गिराइए, उसकी आवाज देखिए कि कैसी आवाज आ रही है ना? और फिर क्या करिए, एक लकड़ी उठाइए, लकड़ी का टुकड़ा उठाइए और फिर उसको भी गिराइए और फिर देखिए कैसी साउंड हो रही है। या कोल होगा आपके पास, कोयला, आप उसको लीजिए और गिराइए तो देखिए कि कैसी साउंड आती है। आप डेफिनेटली उनकी साउंड्स में डिफरेंस महसूस करेंगे। राइट?
आपने कभी मंदिरों में कभी लकड़ियों की घंटी देखी है? हैव यू एवर सीन अ वुडन बेल इन द टेम्पल? नो। व्हाई? क्योंकि वुडन बेल में से आवाज थोड़ी आएगी, right? So the things which are made of metals, they produce a ringing sound when they are struck hard. जब भी कोई चीज मेटल की बनी होती है ना और आप उसमें जोर से कुछ मारते हैं तो वो जोर से आवाज करती है ना? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास टू बॉक्सेस है और वन ऑफ द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड एंड अनदर इज मेड ऑफ मेटल, है ना? और आप उनके अंदर एक एक कोई भी बॉल रख दीजिए, मेटल बॉल ही रख दीजिए और आप दोनों को जोर जोर से हिलाइए, तो कौन से बॉक्स में से आवाज आएगी? ज्यादा आवाज मेटल वाले में से, बिकॉज वो मेटल मेटल से टकरा रहा है और जोर जोर से आवाज कर रहा है। आपने देखा है ना मंदिरों में जो घंटी होती है वो मेटल की बनी होती है और जो गोंग होता है जो उसमें बीच में होता है जिसे पकड़ के आप टन 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 बजाते हैं, वो भी तो मेटल का बना होता है। अगर अगर बाहर से घंटी आप मेटल की बना देंगे और अंदर से जो गोंग होगा उसका उसको अगर आप वुडन का बना देंगे तो भी तो आवाज नहीं आएगी ना। सो मेटल हैज टू स्ट्राइक द मेटल so that the so that the loud voice can come, so that the loud sound can come, है ना? तो since metal produce ringing sounds, they are said to be sonorous. And the materials other than metals जो ऐसी साउंड नहीं कर पा रहे हैं, they are non sonorous, right? So अभी हमने इतनी देर में बहुत सारी चीजें पढ़ ली, हमने मेटल्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं आज। जैसे कि मेटल्स में एक लश्चर होता है। अगर आप लोहा रखेंगे ना अपने सामने और उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके लाइट में हिलाएंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें शाइन है, उसमें लश्चर है ना? और फिर दूसरा क्या होता है? दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब आप किसी भी उस मेटल से क्या कर सकते हैं? तार बना सकते हैं। या दोज आर मैलिएबल। मैलिएबल मतलब आप उसको मार मार के उसकी शीट बना सकते हैं। एंड देन दे आर सोनरस इन नेचर। मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। सोनरस का मतलब क्या होता है बेटा? जो बहुत जोर से साउंड करता है, बहुत जोर की साउंड निकालता है ना? तो दे आर सोनरस इन नेचर एंड देन दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना? अगर आप लोहे की कढ़ाई को गैस में रखेंगे तो वो हर तरफ से गर्म होगी, नहीं? है ना? और अगर लोहे की कढ़ाई के एल्यूमिनियम हैंडल होंगे तो भी वो गर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोहा एल्यूमिनियम में हीट को पास कर सकता है, ठीक है ना? लेकिन अगर उसके लकड़ी के हैंडल होंगे तो लकड़ी गर्म नहीं होगी, सिर्फ कढ़ाई गर्म होगी। क्यों? क्योंकि लोहा आगे हीट को लकड़ी में पास ऑन नहीं कर सकता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? एंड सेम गोज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, है ना? इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर आप मेटल की पिन है आपकी तो उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, लेकिन जैसे आप वहां पे वुड लगा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। जैसे ही आप वहां पे प्लास्टिक लगा देंगे या रबर लगा देंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, है ना? सो these are, so metals are good conductors of electricity while non-metals they are bad conductors of electricity. So ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी? they are hard, they are lustrous, they are malleable, they are ductile, they are sonorous, they are good conductors of heat, they are good conductors of electricity. So इन सबको क्या कहते हैं जिनके पास ये सारी चीजें होती हैं? These are called as metals. And the example of metals are iron. कौन कौन होते हैं metals? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी तरफ मटेरियल्स लाइक कोयला, कोल एंड सल्फर, दे आर सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट, दे आर नॉट हार्ड एंड उनमें से शाइन नहीं आती है। दे आर वेरी डल, वेरी वेरी डल एंड दे आर नॉट वेरी दे आर नॉट मैलिएबल एंड टेक्टाइल। अगर आप उसको मारेंगे तो उसका कोई शीट या वायर नहीं बनने वाला है, वो क्या होगा? वो तो पाउडर बन जाएगा, राइट? जैसे ही आप उसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे इट विल बिकम अ पाउडरी माउस, है ना? एंड अगर आप कोयले को जमीन पे मारते हैं, गिराते हैं, या सल्फर को जमीन पे गिराते हैं तो उससे कोई आवाज भी नहीं आएगी खास, बिकॉज दे आर नॉन सोनरस, नॉट सोनरस, उनमें मेटल जैसी प्रॉपर्टीज नहीं है और वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी अपने थ्रू कहीं भी पास नहीं कर सकते। वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सो दीज मटीरियल्स दे आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स क्या है हमारे? सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, एटसेट्रा, है ना?
सो अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कुछ कॉन्ट्रोडिक्शंस भी है इसमें। फॉर एग्जांपल ऐसे भी मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम जो कि सॉफ्ट होते हैं और उनको आप नाइफ से भी काट सकते हैं, है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन हमारे पास साइंस में हर चीज के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस मतलब कुछ अलग तरीके के एग्जाम्पल। तो ये एक अलग तरीके का एग्जाम्पल है कि सोडियम एंड पोटेशियम दे आर मेटल्स, लेकिन दे आर वेरी सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद नाइफ। एंड मरकरी, एंड अभी मैंने आपको क्या बोला कि दे आर हार्ड। तो कोई भी चीज हार्ड कब होती है, जब वो सॉलिड फॉर्म में होती है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में स्टील की चम्मच है, तो वो कैसी फॉर्म है, सॉलिड। लेकिन वाटर क्या होता है, इट इज लिक्विड इन फॉर्म, है ना। सो मरकरी इज ऑल्सो मेटल, लेकिन वो क्या सॉलिड फॉर्म में है, नहीं। वो किस फॉर्म में है, इट इज इन लिक्विड फॉर्म। तो रूम टेम्परेचर में इट इज इन लिक्विड फॉर्म। सो दीज आर कॉल्ड एज एक्सेप्शंस। मरकरी आपने कहाँ देखा है, जब कभी आपको फीवर होता है या आपके घर में किसी को फीवर होता है तो आपके पेरेंट्स आपका थर्मामीटर में टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं ना। तो टेम्परेचर में क्या होता है, तो टेम्परेचर जिसमें रिकॉर्ड करते हैं थर्मामीटर, उसमें क्या होता है अंदर, उसमें होता है मरकरी, है ना। तो मरकरी हमारी बॉडी की हीट लेके फिर उसको आगे जाके टेम्परेचर में वेरिएशन आपको दिखाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज लिक्विड स्टेट ऑफ द मेटल। सो मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम, है ना, ये एक्सेप्शंस हैं ये, लेकिन ये मेटल्स ही हैं। ये हार्ड नहीं है, ये सॉलिड नहीं है, लेकिन दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो इनमें और तो उसमें बाकी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होंगी लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज हैं। सो दीज आर एक्सेप्शंस। तो इसको कहते हैं एक्सेप्शंस। तो आज हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जितनी भी बात करी है, दैट इज द फिजिकल पार्ट ऑफ इट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कल के चैप्टर में वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Okay, so you complete these two tables in your book, and then tomorrow we will start with your next part of the same chapter. Okay, everyone. Thank you. Bye bye.